Hello, friends. Good evening. I am Dr. Vivek Jain from Team Cerebellum, and I'm very happy to have with us Dr. Gaurav, one of the success stories from FMG January 2024. Dr. Gaurav, welcome and heartiest congratulations, not just to you, but your entire family, especially parents. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. They are dancing. Arey, wow, lovely. Make a video and share with me. I'm going to Thank. post it on social media. You should also be Yes, there sure, along with them, right? sure, sir, sir. I'm so happy to see you happy. Now, Dr. Gaurav, when the word Gaurav comes to my mind, I think four words come to my mind simultaneously: honor, pride, glory, and Right. dignity. Right? So, Yes. honor, pride, glory, dignity. So, I'm so happy to see you happy. Dr. Right. Gaurav, let's start the interview because see, you have cleared the exam. A lot of your friends have cleared the exam. This time, result has also been good. But we Yes, have to remember only 1 out of 5 students have cleared the exam. There are yes, 4 out of 5 students, your friends, your colleagues, your seniors, who may have missed the exam again. So, idea of doing this interview with a successful student like you is to help them prepare best for the upcoming next exam, whenever the next FMG exam comes. So, Dr. Gaurav, we'll divide our interview in 3 parts. We'll discuss about your preparation strategy, how Cerebellum has helped you, and any advice you would like to share with the junior students. So let us start with your preparation strategy. First of all, introduce yourself. Tell us about your city you live in, about your college, about your score you have scored in this exam. yes, sir. Myself, Dr. Gaurav. I am from Delhi, India, and I studied from Asian Medical Institute, Kyrgyzstan, and I have scored 184 in this January exam. Okay, wonderful. So both of us are sitting in different parts of Delhi, and I am interviewing you. Great, Yes, sir. 184. 184 is a lovely score. And Dr. Gaurav, now I will hold and I will only listen to you. Can you share in detail your preparation strategy, how you managed to crack this exam? Yes, sir. Sir, first of all, I want to thank the all the team members and all the teachers and all the like God to me that they have made me pass this exam. I'm fully an average student, not an medium average or not an fully average student. I'm not a type of 200 plus student. I'm only a type of 180 plus student. So thank you very much, sir. And this strategy starts about 2 years ago. I think after COVID times, then I started my studying. Then I completed mainly 3 subjects: the medicine, surgery, and the patho. 3 subjects I completed, and these 3 subjects are like the things that they gave me around 80 marks, 80 to 90 marks, and and about the things PSM, uh, I I think I want to thank from bottom of my heart that I have got. I think there were 51 questions. I have got right 45 to 46 question right, I think. Wow, wonderful, And wonderful. uh, yes, sir. And after coming here, after my completion of my college, when I came here, then I started only rapid revision, only rapid revision. And one thing I want to say to you all, to you, that do RR, but do as many times as possible. I did it, I think 6 to 7 times, but doing only not only the thing, but you have to revise the thing daily to daily and solve the MCQs that a counterpart of thing this. And and you have to be very consistent, not a day off, not a 2 day off, very consistently. Praveen sir once told that लगे रहो, बस रुकना मत, लगे रहो रुकना मत, आप हो जाओगे. बस वही लाइन मेरे दिमाग में बार बार गूंजती है कि लगे रहो रुकना मत, बस हो जाओगे. बस ये लाइन अपने दीवार पे लिख के चिपका लो कि लगे रहो रुकना मत, हो जाओगे. बस इतना ही इसका एग्जाम का वो है. डॉक्टर गौरव, आपसे ना कुछ देर पहले मैंने डॉक्टर राजेश का भी इंटरव्यू किया। वो भी आईएसएम से हैं, मतलब आप ही के वहां से हैं। आप एशियन से हैं, वो आईएसएम से हैं। तो उनका भी स्कोर आपके जितना ही अच्छा है, 198 है उनका स्कोर। तो उन्होंने भी आपके जैसी ना काम की चीज जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर की, वो ये थी कि मल्टीपल रिविजन्स बहुत जरूरी है।
और वो कोई भी स्टूडेंट हो, देखो आप खुद को एवरेज स्टूडेंट कह रहे हो, एवरेज स्टूडेंट तो मैं भी हूँ, एवरेज यस। स्टूडेंट सारे हैं। और मेरा ये मानना है कि एवरेज स्टूडेंट ही सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं एग्जाम में, क्योंकि उनमें कुछ चाहत होती है कि हमें बेटर करके दिखाना है, हमें अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके दिखाना है। तो यस। एवरेज स्टूडेंट आप हो, रहोगे, लेकिन अपने आप को एवरेज कहना छोड़ दो, क्योंकि आपने टॉप 20% में जगह बनाई है, और मार्क्स वाइज देखे तो शायद टॉप 5% में जगह बनाई है, राइट? थैंक यू सर, ये आपका बड़प्पन है। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल सच बात है। देखो एग्जाम ना, एफएमजी को पढ़ाते हुए मुझे 20 साल हो गए, मैंने भी एक चीज रियलाइज की है, वाकई में एग्जाम डिफिकल्ट है। लास्ट 3 इयर्स में तो मुझे एफएमजी पेपर्स नीट पीजी पेपर से थोड़े डिफिकल्ट लगे, जबकि दोनों नेशनल बोर्ड के एग्जाम ही बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम दो लेवल्स पे मुझे लगी। एक तो जब हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो वहां पे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, शायद हम नहीं पढ़ते, वो भी एक फैक्ट है कि शायद हम उतना नहीं पढ़ते जितना पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ना काफी, हाँ, लेकिन वापस आके स्टूडेंट्स 6 महीने में, या फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता तो सेकंड में, इतनी मेहनत करके 19 सब्जेक्ट्स के साथ क्लियर करते हैं। तो वो कोई कम अचीवमेंट नहीं है, आपको भी याद रखना है कि आपने जो करके दिखाया है बहुत बड़ी अचीवमेंट चाहिए। थैंक यू सर। है, राइट? तो और थोड़ा डिटेल में बताओ कि जैसे सपोज मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने इस बार भी एफएमजी एग्जाम दिया, और मेरा डॉक्टर विवेक जैन का एग्जाम इस बार क्लियर नहीं हुआ। तो डॉक्टर गौरव, डॉक्टर विवेक जैन को क्या एडवाइस करेंगे, मैं अपने अगले एफएमजी एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करूं? मैं सबसे पहले ये एडवाइस करूंगा कि आप अपने 4 सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट जो आपके लगभग लगभग 100 मार्क्स का फॉलो अप करते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, पैथो और पीएसएम। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट मैं आपको कहूंगा कि ये आपको फुल्ली डिटेल में पढ़ने हैं। एक एक पॉइंट, एक एक सब जो भी लिखा हुआ है नोट्स में आपके, और नोट्स आपके पास अगर प्रिंटेड है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उसमें लिख सकते हो, उसमें आप पेज चिपका सकते हो अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है। ठीक है। और दूसरे ये है कि आप जब क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम पे आप ये मत देखो कि ये क्वेश्चन मेरे एक एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा, ये मान के चलो कि कुछ ना कुछ आ जाएगा इसमें से, तो उस पॉइंट को उसके उस जो आपने नोट्स पढ़े हैं या फिर उस टॉपिक्स में से उसके साथ उसको लिख लो। वो आपको याद नहीं रहेगा, ये गारंटीड बात है, मेरे साथ भी हुआ है, ये याद नहीं रहता है। उसको आप जब बार बार रिवाइज करोगे ना, और जब आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ये लिखा हुआ था वहां, कहीं ना कहीं था दिमाग में, वो है चीज, तो आप उसको तुरंत मार्क कर दोगे। और मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं एग्जाम दे रहा था तो जो क्वेश्चन जो मुझे आते थे ना, वो मुझे 10 सेकंड से ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगा मुझे उस क्वेश्चन में। लेकिन जो मुझे नहीं आते थे ना, वो मुझे 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट भी ले गए। तो लेकिन अगर आपको आता है वो क्वेश्चन तो आप उसको 10 सेकंड में करके आगे निकल लो, आप दूसरे क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे पाओगे। ठीक है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आप मान लो कहीं और से पढ़ते हो, ठीक है, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो वो भी आप लिख लो। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दो कि नहीं ये सर ने नहीं पढ़ाया तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो ये मैं नहीं पढ़ूंगा। लिख लो उसको आप, क्योंकि आपके लिए वो जरूरी है। तीसरा, नीट पीजी के पेपर सोल्व करने हैं 3 टाइम्स एटलीस्ट। और पेपर सोल्व करना ही जरूरी नहीं है, पेपर की जो एक्सप्लेनेशंस है ना, वो देखो ज्यादा। जैसे कि अब की बार क्वेश्चंस थे मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल साइकिल वाला, जो फेज वाला था, ये क्वेश्चन 2019 में या 20 में आया था, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ और था। लेकिन जहां से मैंने एक्सप्लेनेशन सुनी थी वहां पे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन था, तो मैंने उसको लिख लिया था कि मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ये होता है और ये सब होता है। तो आप उसको लिख लो, तो उससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट होगा कि हाँ आपको याद है, आप 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके। देखो डॉक्टर गौरव ने दोस्तों एक बहुत अच्छी 3 चीजें बताई। पहला तो मुझे उनका वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, पैसिव मेमोरी का। ये स्टूडेंट्स मुझे कई बार बोलते हैं कि आप इतनी बार अपने नोट्स को रिवाइज कर चुके हो, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना आपको याद आता है कि पेज पे राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे मैंने लिखा हुआ है, तो 100% गारंटी आपका आंसर सही है। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो भी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं सोर्स के बियॉन्ड भी कहीं से मिलती हैं, तो रेस्ट्रिक्ट मत करो, वन लाइनर्स बनाओ, पेस्ट करो नोट्स को अपना पूरा एक बाइबल की तरह बुक बना लो, जिसे आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो और आपको याद हो जाए। और तीसरा, उन्होंने बताया नेशनल बोर्ड के एफएमजी पेपर्स के अलावा नीट पीजी के पेपर्स भी सॉल्व करो। मैंने आपको बताया पिछले 3 साल में तो मुझे एफएमजी के पेपर थोड़े ज्यादा ट्रिकी लगे नीट पीजी के मुकाबले। वेरी नाइस। डॉक्टर गौरव, आपको सेरिबेलम ने कैसे हेल्प की इस एग्जाम में? सेरिबेलम का सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा। दूसरा ये है कि आप
अगर आप मतलब पढ़ रहे हो, जैसे कि सेरेबेलम से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप उसके साथ क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। आप अपना बार बार सोर्स चेंज मत करो, ठीक है। आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ इसमें से आएगा, ठीक है। उसके उसके आसपास बियॉन्ड भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप लास्ट एग्जाम आता जाएगा ना, तो आपके पास यूट्यूब पे इतनी वीडियोज आएंगी कि आप खुद सेलेक्ट नहीं कर पाओगे कि आपको कौन सी देखनी है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि इतनी वीडियोज आ गई है, इतने लिंक आ गए हैं, दोस्त लोग भी भेजते थे कि आप ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। तो मैं भी सिलेक्ट नहीं कर पाता था कि कौन सी देखूं और कौन सी रहने दूं। और दिमाग में ये चल रहा होता था कि कभी इसमें से ना आ जाए, कभी इसमें से ना आ जाए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना एक सोर्स चुनो, ठीक है। आपने अगर सेरिबेलम चुना है तो आप सेरिबेलम को चुन के रखो। ये नहीं कि आपने 3 महीने उससे पढ़ा, 2 महीने उससे पढ़ा, उसके बाद उस पर भाग गए वहां से। ऐसा नहीं, उसको चुन के रखो, ठीक है। उसके बाद उसी के अंदर एडिट करते रहो। आप मल्टीपल सोर्सेज यूज कर सकते हो, मेरा मानना है कि नहीं यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें ही एडिट करो। जैसे कि सेरिबेलम के आपके पास नोट्स है ना, उसी में ही एडिट करो। और जो सेरिबेलम के जो बॉक्सेस के अंदर जो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको तो ये समझो कि आपको रट के जाना है, मगअप करना है आपको। क्योंकि वहां से अगर ज्यादा, कम से कम नहीं तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सीधे के सीधे। वहां से अगर आपके 30 से 40 क्वेश्चन ठीक हो गए और 100 क्वेश्चन आपके नोट से ठीक हो गए, तो ये समझो कि आप पास हो। और मेरा टारगेट जो था ना, वो 160 150 के करीब था मेरा, 200 के टारगेट नहीं था, ठीक है। तो 160 का टारगेट रखो अपना, 160 170 का टारगेट रखो, आप पक्का पास हो जाओगे। वाह दोस्तों, डॉक्टर गौरव ने बड़ी काम की चीज बताई कि जो भी सोर्स हो आप उस पर भरोसा रखो। तो जैसे हम कहते हैं ना सेरिबेलम के लिए कि बिलीव तो रखो, भरोसा तो रखो, वो आपको रखना पड़ेगा अपने टीचर्स पे भी और खुद पर भी। दूसरा इन्होंने बताया फ्लेक्सिबिलिटी, आप रहो फ्लेक्सिबल, अगर इधर उधर से भी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे यूज करो। तीसरा इन्होंने बताया कि सेरिबेलम के नोट्स को आपको करके जाना है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहूंगा, सेरिबेलम के सारे नोट्स ना फैकल्टी ने खुद बनाए हैं। मतलब एक एक लाइन हो सकता है मैंने टाइप ना की हो, लेकिन उसमें से ज्यादातर सारी चीजें मेरी खुद की लिखी हुई हैं। और जो हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं उससे हमने कोशिश की है कि नोट्स में कन्वर्ट कर दें। अच्छा डॉक्टर गौरव, मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ एशियन इंस्टीट्यूट में, या मैं कहीं और दुनिया के किसी और इंस्टीट्यूट में, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा कि आप फुल वीडियोस देखो, पूरे वीडियोस देखो। आप ये मत सोचो कि रैपिड रिवीजन देख लेता हूँ, लास्ट में वही पढ़ना है तो अभी वो देख लेता हूँ, नहीं। आप फुल वीडियोस देखो, ठीक है। आप मान लो कि आपकी एबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप शुरू शुरू में उसमें गए हैं, क्योंकि मेरा भी वो फेज था, तो शुरू शुरू में गए हैं, तो आप एक एक वीडियो देखना चालू करो। आप स्टार्ट तो करो, अपने आप रिदम बन जाएगी, आप स्टार्ट तो करो। और यूनिवर्सिटीज का क्या होता है, कई यूनिवर्सिटीज में होता है कि प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि भाई अब हमारी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास करना है। उसको भी थोड़ा ध्यान में रखो, लेकिन इस वाले को ज्यादा ध्यान में रखो, क्योंकि अल्टीमेट एम यही है एक, ठीक है। और धीरे धीरे अपना स्टार्ट करो, जैसे कि हल्के सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, जैसे कि अनाटमी से स्टार्ट कर लिया या फिर फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर लिया। हल्के सब्जेक्ट से स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे अपनी रिदम बनाओ। और थर्ड ईयर में तो मेरा मानना है कि थर्ड ईयर में तो आपका मेडिसिन और सर्जरी एटलीस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके चलो, ये आई थिंक काफी यूजफुल एडवाइस रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त आपका इंटरव्यू देखेंगे और आने वाले कई महीनों सालों तक इस इंटरव्यू को भी यूट्यूब पे और हमारे चैनल पे जरूर देखेंगे। डॉक्टर गौरव एक और मुझे चीज बताओ, मतलब स्टूडेंट्स को ना कई बार बात हमारी होती है, किसी की फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 14th अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया है। तो एग्जाम क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम से पहले ना सब कहते हैं कि सर मुझे टेंशन हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। हालांकि डिप्रेशन सही वर्ड नहीं है। तो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी होना तो नॉर्मल है। आप उसे कैसे डील करते थे? मैं कैसे डील करूंगा, सबसे पहले ना, आप अपनी जैना मैम एक बहुत अच्छी बात बताती है कि आप छोटी कॉपी बनाओ, ठीक है। आप अपनी एक छोटी कॉपी बनाओ, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, ठीक है। मेरे पास भी एक छोटी कॉपी है, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास भी एक छोटी कॉपी है। आप उसको सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उसको लिखो, ठीक है। आप जब वो रिवाइज करेंगे ना, तो आपको अपने आप याद आएगा कि आपके मेन नोट्स में क्या लिखा हुआ था,
ठीक है, क्योंकि मैंने जो जो छोटी कॉपी बनाई हुई थी ना, वो मैंने मेन नोट से बनाई हुई थी। जैसे कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो मुझे कोई चीज याद नहीं रह रही है, ठीक है, मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया, 3 बार रिवाइज कर लिया, याद ही नहीं है, तो मैंने उसको क्या किया, उठा के छोटी कॉपी में नोट कर लिया। ठीक है, अब मैं वो जब छोटी कॉपी में जब मैं उसको रिवाइज करूंगा ना, तो मुझे वो मेन नोट्स याद आएगा कि हाँ ये चीज थी, यहाँ लिखी हुई थी, और ऐसे उसको मुझे अप्लाई करना है। और दूसरी ये बात है, जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है, तो जो क्वेश्चन में जो पॉइंट्स है ना, जैसे कि मान लो कोई छोटा पॉइंट है तो वो तो आप टॉपिक के साथ लिख लोगे, लेकिन जो बड़ा पॉइंट है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने देखा ही ना हो, कभी कोई टॉपिक है जो आपने देखा ही ना हो, उसको भी आप छोटी कॉपी में नोट कर लो। और तीसरी बात ये है कि जो एग्जाम से एक दिन पहले देखो, स्ट्रेस एंजाइटी होना एक आम बात है, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, आप उससे डरना नहीं है आपको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने घबराना नहीं है। और दूसरा ये है कि आप अच्छा करोगे, बेस्ट करोगे, क्योंकि आपने पढ़ा है। और स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना तो एक अच्छी बात है, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी भूलोगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तभी तो भूल रहे हो, नहीं पढ़ा होगा तो कहाँ से भूलोगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर गौरव, आपने ना मेरी बात रिपीट कर दी जो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ। स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं कह रहा हूँ स्ट्रेस हो रहा है इसलिए तो तुम नॉर्मल हो, अपने आप को नॉर्मल समझो, आराम से पढ़ो। स्ट्रेस होना एक बिल्कुल नॉर्मल चीज है, आप मेहनत कर रहे हो, स्ट्रेस तो बिल्कुल होगा। आखिरी के 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल तो ये, डॉक्टर राजेश जो आपसे पहले, जिनका मैंने अभी इंटरव्यू लिया 5 मिनट पहले, वो मुझे कहते हैं कि उन्होंने 3 साल से सोशल मीडिया यूज नहीं किया। तो ये तो बड़ी मुश्किल चीज है। तो सोशल मीडिया क्या बिल्कुल बंद कर दें या लिमिटेड यूज करें स्टूडेंट्स? नहीं, मैंने तो बंद नहीं किया। तो नहीं, दोस्तों, मैंने बंद नहीं किया। ये एक स्ट्रेस बूस्टर है एक तरह के। जैसे कि आप मान लो पढ़ते पढ़ते थक गए हो, 2 घंटे में आप एक ब्रेक ले लो 5 मिनट का, ठीक है, और या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लो जिससे आपको मन लगे कि आपका जो दिमाग है ना उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाए थोड़ा सा। बस इतना ही करना है। ये नहीं कि आप 2 घंटे रील चला के बैठ गए या 3 घंटे रील चला के बैठ गए, तब तो फिर वो डिजास्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर गौरव ने कहा, दोस्तों आपको सोशल मीडिया यूज करना है तो बिल्कुल करो, लेकिन थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड वे में करो। ऐसा ना हो कि 2-2 घंटे मोटिवेशन की वीडियो देखते रहो, राइट? हाँ तो थोड़ा लिमिटेड वे में ही यूज करना है। और मेरा दूसरा सवाल, डॉक्टर गौरव आप दिल्ली में किस एरिया में रहते हैं? सर, मैं नांगलोई में रहता हूँ। नांगलोई साइड पे रहते हैं, तो नांगलोई साइड से आप पार्टी देने मुझे कहाँ आओगे? आप जहाँ बताओगे मैं वहां आ जाऊंगा। चलो फिर हम ना जल्दी, पंजाबी बाग मेरे घर से भी और आपके घर से भी ना बिल्कुल रास्ते में बीच में पड़ेगा, तो हम दोनों बिल्कुल वहीं सर। मिलेंगे और आपसे पार्टी लेंगे। और अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से जरूर बधाई देना, कहना कि टीम सेरिबेलम की तरफ से और मेरे पर्सनल तरफ से भी ना बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने की खुशी आपको है। मैं आपको बता रहा हूँ, शायद हमारे चेहरे पे ना दिखे, लेकिन हमारे मन में भी आपके जितनी है उससे ज्यादा ही खुशी है। I was sitting down here, and my result was declared, and I was seeing the result, and I was like shouting. Then my parents think, what happened to him? Then they say they were more than me. अरे वाह, क्या बात है! इस चीज को दोबारा रेप्लिकेट करना और जरूर शेयर करना। मतलब एक ऐसी जी फीलिंग है सर। जिसको कोई और शायद, अब मेरे ख्याल से नॉन मेडिको तो समझ ही नहीं पाएंगे, जो हम मेडिकोज की लाइफ के साथ होता है। और आपके जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, वो इससे ज्यादा रिलेट करेंगे। राइट जी डॉक्टर सर, गौरव? एक और बात मैं कहना हाँ जी, चाहूंगा। बिल्कुल। जैसे कि आप पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो, ठीक है, तो पीवाईक्यू ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू बिल्कुल उठ के आ जाएगा। ठीक है, जो पीवाईक्यू की जो एक्सप्लेनेशंस है ना, जो पीवाईक्यू की जो एक्सप्लेनेशंस है, उनको गौर से सुनिएगा, उनको गौर से ध्यान दे के सुनिएगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं एक्सप्लेनेशन से। मैं फिर से कह रहा हूँ, पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं आते हैं, पीवाईक्यू की एक्सप्लेनेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैंने विवेक जैन सर की, मैंने हर किसी की पीवाईक्यू की एक्सप्लेनेशन देखी है, जितने भी आप टीचर्स हैं सबकी मैंने एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखी है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे। अभी जनवरी एग्जाम में मुझे ऐसा लगा कि पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, लगभग लगभग नहीं तो 40 से 50 क्वेश्चंस थे पीवाईक्यू के एक्सप्लेनेशन से, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, जो मैं आपको शुरू में बताया था ना कि 10 सेकंड वाले क्वेश्चंस, वो 10 सेकंड वाले क्वेश्चंस वही होते हैं। वो आपके, ये समझो कि मार्क्स को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, वो आपके पास कराने वाले मार्क्स होते हैं वो। तो आपको पीवाईक्यू की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से सुननी है, और बहुत अच्छे से आप क्यू बैंक को या फिर किसी भी जो अदर जो सोर्सेज होते हैं उसको थोड़ा सा साइड कर सकते हो, लेकिन जो पीवाईक्यू की जो एक्सप्लेनेशन है ना, उनको तो कम से कम आपको 2-3 बार करनी है। रैपिड रिवीजन कम से कम आपको 5 से 6 बार, या ज्यादा हो सके तो ज्यादा बार करना है। ठीक है, और बार बार रिवाइज करना है, बस इन्हीं चीजों को। आपको 150 लाना है, आपको 250 नहीं लाना है, 150 लाना है,
बस इसी चीजों पे खत्म करो और दूसरे सोर्सेज पे जाना बंद कर दो। सिंपल सी बात है, दूसरे सोर्सेज को ढूंढना बंद कर दो, एक सोर्स से जुड़े रहो। आप सेरिबेलम ले चुके हो तो सेरिबेलम से जुड़े रहो, ठीक है, बस खत्म। वाओ, वाओ, थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरव। और वाकई में आज सेरिबेलम ना, आपकी ये बात सुन के वाकई में हम गौरव महसूस कर रहे हैं, वी आर फीलिंग प्राउड ऑफ यू कि आपने जो करके दिखाया। और आपकी जो लास्ट जाते जाते आपने टिप दी है ना, PYQ एक्सप्लेनेशन, ये वाकई में बहुत यूजफुल है और हमें भी समझ में इससे आता है कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को और बेटर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरव, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस थैंक यू अगेन। सर। थैंक यू चलो सर। यार दोस्त, मिलेंगे जल्दी, पार्टी में लेके रहूंगा। जी सर। थैंक यू सर। चलो, ओके, टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बाय बाय। थैंक यू सर।